Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is session number 37th from the class of Communication Skills, Learning and Development. So before we start the session, a quick recap of what the last session was about. It was about a podcast where we understood chess vocabulary. Uh, Starting with the first section of this session, verbal skills, we will understand the word thirsty. So is there anyone who can let me know what is thirsty? Make this session as interactive Sir, as you can. We are only 5 people today, so make it as interactive as you can. Mariam, you were trying to say something about thirsty. when a person feels dry and they need water, that is called thirsty. Yeah, so thirsty traditionally means when a person needs a person has an urge to drink. Yeah, a person has a feeling that he needs a drink or he needs to drink something. This is called thirsty. So traditionally, oh, what is this? So the new meaning of thirsty is what is roasting is यार आई एम रियली वेरी सॉरी पीपीटी को ना छेड़ा आज फिर शायद मेरे बेटे ने so it was not about roasting, it's about thirsty. So thirsty is uh, a feeling uh, when thirsty is a feeling when someone needs a feeling that tells you that you need to drink or uh, you need to drink something or whenever you have a strong desire about something. इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ स्ट्रॉन्ग डिजायर का जैसे आई एम थर्स्टी फॉर टेक्नोलॉजी अगर कोई बंदा ये बोलता है आपको कि आई एम थर्स्टी फॉर टेक्नोलॉजी मतलब उसको टेक्नोलॉजी नहीं है उसको टेक्नोलॉजी पसंद है इतनी पसंद है कि वो उसको डेली सीखता है उस पर डेली काम करता है लेकिन इसका एक और मीनिंग है इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव और जब भी हम थर्स्टी को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये उन लोगों को बयान किया करता है जो लोग अटेंशन सीकर होते हैं या प्रेज सीकर होते हैं so whenever the word thirsty is used as an adjective it describes people who are trying very hard to get attention and praise particularly on social media आपने देखा होगा अक्सर हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें कॉल करके कहते हैं कि यार हमने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया या हमने एफबी पे ये पोस्ट किया सो प्लीज लाइक और कमेंट ऑन दिस पोस्ट और शेयर इट so that I can have as much number of likes as I can. So इन लोगों को भी thirsty कहा जाता है और उस टाइम thirsty acts as an adjective. सो थर्स्टी के तीन मेन मीनिंग्स हैं पहला मीनिंग तो ये है कि जब किसी को प्यास लगी हो सेकंड इज जब कोई आदमी किसी चीज को इतना चाहता है बहुत ज्यादा चाहता है व्हेन ही हैज अ वेरी स्ट्रांग डिजायर ऑफ समथिंग एंड थर्ड इज एज एन एडजेक्टिव इट describes people who are very who are trying very hard to get attention or praise especially on social media अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम I ran 3 miles today. I am very thirsty. So ये वाला जो context है कि I ran 3 miles today. I am very thirsty. This is when you need to drink something. जब आपका गला सूख रहा है 3 miles आप दौड़ कर आए हो 3 miles की एक रेस और अब आपका गला सूख रहा है आपको पीने के लिए कुछ चाहिए Second is he spent last 5 years in film school. He is thirsty for movie making. अब यहाँ पर थर्स्टी फॉर मूवी मेकिंग का मतलब है इज पैशनेट अबाउट मेकिंग मूवीज और ही इज हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मेकिंग मूवीज उसने पिछले 5 साल फिल्म स्कूल में निकाले और वो बहुत पैशनेट है उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है मूवीज बनाने का इस कॉन्टेक्स्ट में द वर्ड थर्स्टी डिस्क्राइब्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर अब थर्ड सेंटेंस देखो दिस इज स्टॉप बीइंग सो थर्स्टी व्हाई डू यू ऑलवेज हैव टू पोस्ट फोटोज ऑन एफबी जस्ट टू गेट अटेंशन तो अब यहाँ पर जो थर्स्टी वर्ड है दिस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव व्हिच डिस्क्राइब्स अ मैन हु ऑलवेज पोस्ट फोटोज ऑन एफबी in order to get attention or in order to get likes so यहाँ से clear हुआ आपको and in this sentence thirsty is acting as an adjective fourth one is he is so thirsty he is always sharing photos with the puppy to get likes अब यहाँ पर तो बहुत clear है कि वो इतना thirsty है या इतना प्यास है कि वो हमेशा फोटोज अपलोड करता है पपी के साथ लाइक्स के लिए
सो थर्स्टी के तीन मीनिंग समझ आए सबको. द फर्स्ट वन इज व्हेन यू नीड टू ड्रिंक समथिंग. द सेकंड वन इज व्हेन यू हैव ए वेरी स्ट्रांग डिजायर फॉर समथिंग or desire of something. And the third one is whenever thirsty is used as an adjective, it describes people who are trying very hard to get attention or praise, particularly on social media. So if you have a friend who always posts his photos on Instagram or FB or anywhere on the social media, कहीं पर भी आपका कोई एक दोस्त या कोई जानने वाला कुछ अपलोड करता है और वो आपको कॉल करके बोलता है कि यार इसको लाइक करो या इसको शेयर करो या फिर इस पर कमेंट जरूर करो ताकि उसको अटेंशन मिले और प्रेज मिले. सो दैट मीन्स ही इज थर्स्टी. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट थर्स्टी इज एन एडजेक्टिव. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. The next section is a new meaning to an old word. So the old word is vanilla. अब vanilla ऐसा होता है एक्चुअली में. मेरे को याद है देयर वाज वन ऑफ माय सिस्टर्स जिनको वनीला का एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं था. शी यूज्ड टू थिंक वनीला इज ए वाइट कलर्ड सब्सटेंस जो वाइट कलर का होता है आइसक्रीम के ऊपर. बट एक्चुअली में वनीला वनीला जो होता है दिस इज ए काइंड ऑफ फ्लावर. और ये जो इसका ब्लैक हिस्सा होता है ये एक स्टिकी सब्सटेंस में बदला जाता है जब इसको गर्म करते हो और प्रोसेस करते हो. और फिर वो ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस जो होता है वो प्रोसेसिंग के बाद व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है और फिर हम उसको एज एन आइसक्रीम फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं. सो बिफोर आई गिव ए न्यू मीनिंग टू द वर्ड वनीला, who will tell me the traditional meaning of vanilla? It's a flavor. It's an ice cream flavor. Traditionally vanilla is an ice cream flavor. So usually it is the most popular ice cream flavor. और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा खाए जाने वाला है और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल फ्लेवर भी वनीला है. दिस इज व्हाई दिस फ्लेवर इज मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि सबसे सस्ता वनीला फ्लेवर होता है. लेकिन द न्यू कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब समथिंग दैट इज बेसिक और ब्लैंड. अब ब्लैंड होती है, देखो बेसिक हो गया सादा और ब्लैंड हो गया विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस और विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग डायलेक्ट या विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. कोई चीज ब्लैंड तब है जब आपको उसके लिए कोई खास फीलिंग नहीं है. सो बेसिक एंड ब्लैंड आर ऑलमोस्ट सेम. बेसिक इज सादा, ब्लैंड भी सादा होता है मगर ब्लैंड में फीलिंग्स का कोई रोल नहीं होता. तो जब कोई बंदा या कोई चीज बेसिक हो, सादा हो या ब्लैंड हो एकदम विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, उसको भी वनीला कहा जाता है. और ये जो इसका मीनिंग है वनीला का, ये वाला मीनिंग डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज बेसिक और ब्लैंड, this meaning was invented in 20th century. And why this was invented in 20th century? Because and this meaning came from France. France में vanilla flavor बहुत common हो गया था. And people started taunting each other, you are vanilla, you are vanilla, you are vanilla. तो एक दूसरे को वनीला बोलना शुरू कर दिया था लोगों ने फ्रांस में 20th सेंचुरी में. और इसी वजह से इसका ये नया कॉन्टेक्स्ट बना वनीला फ्लेवर का कि भाई सादा है या ब्लैंड है. सो पहला सेंटेंस देखते हैं. ही इज नॉर्मली अमेजिंग, हाउएवर इन दिस मूवी हिज परफॉर्मेंस इज वेरी वनीला. अब यहाँ परफॉर्मेंस जो है वो वनीला है, तो मतलब परफॉर्मेंस उसकी खास नहीं है, बेसिक है या ब्लैंड है, बिल्कुल सादी है, कोई स्ट्रॉन्ग कोई अपीलिंग परफॉर्मेंस नहीं है बंदे की. सो यहाँ पर वनीला जो है वो एक बहुत ही सादगी भरे रोल की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. द सेकंड सेंटेंस इज आई एम जस्ट लुकिंग टू बाय ए वनीला कार. अब वनीला कार का मतलब ये नहीं है कि उसको एक आइसक्रीम वाली कार चाहिए या उसको एक कार चाहिए जो आइसक्रीम की बनी हो या वनीला फ्लेवर की बनी हो. वनीला कार मीन्स ए कार विच हैज नो एक्स्ट्रा थिंग्स, विच इज वेरी बेसिक, कि उस पे सिर्फ बैठो उसको चलाओ, उसकी माइलेज है और कोई उसमें एबीएस सिस्टम नहीं है, कोई म्यूजिक सिस्टम खास नहीं है उसका. बहुत बेसिक सी कार है वो, जैसे मारुति 800 यूज्ड टू बी अ वेरी बेसिक कार एंड व्हिच वाज वेरी अफोर्डेबल. So he's looking for something like that. I'm just looking to buy a vanilla car
nothing fancy, no extras, just something to drive to workplace and come back. So उसको एक बिल्कुल सादी गाड़ी चाहिए जो कि उसको ऑफिस ले जाए और वहां से वापस लाए. And the third one is I wanted to go river rafting with my friend, but he's so vanilla. He'd never do anything risky. अब ये जो बंदा है, ऑथर जो है, ये कह रहा है कि मैं रिवर राफ्टिंग करने जाना चाहता हूँ अपने फ्रेंड के साथ, मगर मेरा फ्रेंड जो वो बहुत बोरिंग है, वो बहुत सादगी भरा इंसान है जो कि कोई भी रिस्की काम नहीं करेगा जिंदगी में, वो कोई एडवेंचर वाला काम नहीं करेगा. सो आई होप आपको वनीला का मीनिंग समझ आया होगा. Vanilla, the new context of this word vanilla is basic, bland, or risky. I hope it is clear. Or is there anything you want to ask about this word? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. सो द नेक्स्ट इज बिजनेस इंग्लिश सेक्शन, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लैंग्वेज फॉर क्लिंचिंग ए डील. सो व्हाट इज क्लिंचिंग? क्लिंचिंग इज कंफर्मिंग ए डील. आप कोई डील किसी के साथ कंफर्म करते हो, उस टाइम आपका वर्बिया या फिर उस टाइम आपकी लैंग्वेज या फ्रेजेस किस तरह के होने चाहिए. बट द थिंग इज, आप कंफर्म किस वे में करते हो और कब करते हो. क्या पेपर वर्क होने के बाद कंफर्म किया जाता है किसी चीज को, या फिर पेपर वर्क होने से पहले कंफर्म किया जाता है. एक कंडीशन तो ये है. उसके अलावा जो और कंडीशंस इसमें ध्यान रखनी है while using phrases in order to clinch a deal or in order to confirm that the deal is confirmed or the contract is signed, ये देखना है कि आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, या आप कर क्या रहे हो एक्चुअली. जो भी डील है उसमें एक्चुअली देखो, सी व्हाट इज डील. डील इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज और गुड्स. मैं आपके साथ कोई डील करता हूँ तो उस डील में एक एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा, और एक्सचेंज या प्रोडक्ट्स का होगा या सर्विसेज का होगा या गुड्स का होगा. सर्विसेज का मानो तो मैं आपके लिए कोई काम करूंगा, आप मेरे लिए कोई काम करोगे. गुड्स का होगा, मैं आपको लकड़ी दूंगा, आप मुझे उसके बॉक्स बना के दोगे. या फिर प्रोडक्ट्स का होगा तो मैं आपको पैसे दूंगा और आप मुझे कोई चीज बनी बनाई दोगे. सो दिस इज हाउ ए डील वर्क्स. एंड जब डील कंफर्म करनी है उस टाइम आपके फ्रेजेस क्या होंगे. सो द फर्स्ट फ्रेज इज थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द टाइम टू सी अस. अब ये वाला जो फ्रेज है ना कि आपका बहुत शुक्रिया आप मुझे देखने के लिए आए, दिस इज व्हेन यू डील विद समवन ऑन ए फोन कॉल और रिमोटली. आपने किसी के साथ डील की है किसी फोन पे या रिमोटली, आपने लेटर्स एक्सचेंज किए एक दूसरे को, पेपर वर्क एक दूसरे को बाय पोस्ट भेजा है, और वो पेपर वर्क अप्रूव हो गया और अब आप उससे मिलने गए या फिर वो आपसे मिलने आया. इस सेंटेंस में आपका जो पार्टनर है उस डील का, जो सेकंड पार्टी है, वो आपसे मिलने आई है. सो दिस फ्रेज इज यूज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. थैंक यू फॉर स्पेयरिंग द टाइम टू सी अस. कि आपका बहुत शुक्रिया आप हमें देखने के लिए आए. The second is each product comes with a satisfactory guarantee. I know you won't be disappointed. अब ये वाला जो phrase है, this is most commonly used when you are dealing with products, or when you are giving money or taking money from someone and giving him products, or giving money to someone and taking some products from them. इस सेंटेंस में स्पेशल ये है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो और वो आपको सामान दे रहा है, या फिर आप किसी से पैसे ले रहे हो और उसको सामान दे रहे हो. उस टाइम आप इस तरह से डील कंफर्म करने के लिए फ्रेज यूज करोगे कि जितना भी प्रोडक्ट है वो सेटिस्फैक्टरी गारंटी के साथ आता है, और मुझे उम्मीद है कि आप और मैं जानता हूं कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे. सो ईच प्रोडक्ट कम्स विद सेटिस्फैक्टरी गारंटी. आई नो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड. अब इस फ्रेज का फर्क नहीं पड़ता कि आप बाय फेस बोल रहे हो या फोन कॉल पे बोल रहे हो या इसको रिमोटली लिख कर बोल रहे हो कहीं पर. अब थर्ड फ्रेज है आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट. अब ये वाला जो है, सी एवरी डील इज डन आफ्टर साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट इन ए फॉर्म. अब फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि पेपर पर ही साइन होगा. इट कैन बी बाय वर्ड्स, इट कैन बी बाय गेस्चर्स, इट कैन बी बाय रिटर्न पेपर ऑन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स. अभी दो भाइयों में कोई डील होगी तो वो बात करके एक दूसरे के साथ डील कंफर्म कर देंगे. मैं अपने भाई को बोलूंगा कि यार आप मेरे लिए ये कर दो, मैं आपके लिए वो कर दूंगा. सिंस यू आर इन दिल्ली राइट नाउ,
when you are coming back to home, मेरे लिए आप कारपेट्स ले आना और मैं आपको पे अभी कर देता हूँ, यहाँ से वायर ट्रांसफर कर देता हूँ मनी. So he don't need to sign a paper, or I don't need to sign a paper. I just have to talk to him because he is my brother, and this is how you deal with your brother. You confirm a deal with your brother. और वैसा ही कुछ friends के साथ भी होता है. But whenever you are dealing with a professional client, अब आपका कोई कारोबार है टेक्सटाइल का या कपड़ों का, आपका बिजनेस है या कपड़ों की दुकान है बहुत बड़ी, और कोई आपको बोलता है कि यार हमें 2.5 किलोमीटर कपड़ा चाहिए या 5 किलोमीटर लंबा कपड़ा चाहिए, 5 थान कपड़ा चाहिए हमें, उस टाइम आप उससे पेपर वर्क, तो अगर वो ऑन फोन कॉल है तो उस टाइम आप पेपर वर्क तो नहीं साइन कराओगे, लेकिन हाँ ईमेल्स का एक्सचेंज जरूर होगा. अगर ईमेल्स का नहीं होगा तो मैसेजेस का एक्सचेंज जरूर होगा, किसी न किसी रिटर्न फॉर्म में होगा. लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल करियर में आ जाते हो, उस टाइम आपका हर डील जो है वो पेपर वर्क के ऊपर होती है. और सी दिस इज हाउ यू कंफर्म ए डील इन अ वेरी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट. आप पेपर वर्क साइन करवाते हो, दिस इज कॉल्ड साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट. So I would be grateful if you could just sign the contract. And the fourth one is thank you. It was a pleasure doing business with you. अब मोस्टली लोगों को गलतफहमी ये होती है कि इट वाज ए प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू का मतलब हुआ कि मेरा उनके साथ बिजनेस में चला रहा था, 2 साल 3 साल बिजनेस चला और अब वो खत्म हो गया. सो दैट मीन्स के अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि हाँ शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मेरा आपके साथ बिजनेस करके मुझे बड़ा मजा आया. Although ये past tense में है, it was a pleasure doing business with you. See, business does not mean you are completing something or you are coming to an end of something. Business means you have discussed about something, you exchange few ideas and you are working on it, or you are about to work on it. This is called business. That is why this sentence is used whenever you confirm a deal. And this deal involves a particular kind of business. So ये clear हुआ सबको? Is there anyone who has any doubt regarding this? There is a guest today in this session. Okay, let them be. So is there anyone who has any question regarding these four phrases or that can be used while clinching a deal or while confirming a deal? See, the meaning of the word clinch is to confirm. Clinch का मतलब होता है confirm करना. Is there anyone who has any question? Chalo, let's go to the next part, which is word root analysis and pronunciation. So the first root word that we are going to understand is rid. The second is rupt. Third one is san or sane. देखो इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपके पास सिर्फ ए एन है और उससे पहले एक ही वर्ड है तो वो एन पढ़ा जाता है, एज इन ए एन एन. बट ए एन के आगे अगर आप ई लगा दोगे तो वो एन बन जाता है. So SANE, sane, but SAN, san. Then send, SCEND. So coming to the first one is rid. Rid का मतलब होता है laugh. एक और rid होता है जो कि verb है, मतलब छुटकारा पाना. यहाँ पर rid का मतलब है laugh, root word है. Deride, and same rules applies in, again देखो आप अगर प्रोनाउंसिएशन का वही ई वाला रूल देखोगे, so RID is rid, but RIDE is ride. रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आपके पास एक वॉल है जो कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में है और उसके आगे ई लग जाएगा तो वो लॉन्ग वॉल की साउंड निकालेगा. RIDE राइड, SANE सेन, KITE काइट. और अगर उसके आपके वर्ड के एंडिंग में ई नहीं है और वॉल जो है वो दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, तो वो शॉर्ट वॉल की आवाज निकालेगा, जैसे KIT किट, FIT फिट, RID रिड. सो डिराइड इज टू मेक सम फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना. रिडिक्यूल इज टू मेक फन और मॉक समबडी, किसी को किसी की नकल उतारना या उसका मजाक उड़ाना है. रिडिकुलस इज सिली या कॉजिंग लाफ्टर, कोई भी चीज जो सिली हो और आपको हंसी आए उस पे, दैट इज कॉल्ड रिडिकुलस. सो क्लियर है सबको?
So let's go to the next session, next word, that is rupt. Now, rupt is to break or burst. See, bankrupt. Bankrupt is unable to pay because you are broke. आपका सारा पैसा डूब गया, दिवालिया निकल गया और अब आप पे नहीं कर पा रहे हो. दिस इज कॉल्ड बैंकरप्ट. इंटरप्ट, देखो इंटरप्ट बना है दो रूट वर्ड से. द फर्स्ट रूट वर्ड इज इंटर एंड द सेकंड रूट वर्ड इज रप्ट. So rupt is break and inter is into an conversation or event or something. तो इंटर का मतलब होता है किसी चीज के बीच में और रप्ट का मतलब है ब्रेक. सो इंटरप्ट इज टू ब्रेक इनटू ए कॉन्वर्सेशन और एन इवेंट या फिर टू डिस्टर्ब. थर्ड वर्ड इज रप्चर. RUPTURE. रप्चर. रप्चर इज ए ब्रेक इन समथिंग. टूटना किसी चीज का या फट जाना किसी चीज का. दिस इज कॉल्ड रप्चर. क्लियर है सबको? चलो, कमिंग टू द थर्ड वर्ड, दैट इज सैन. सैन मीन्स हेल्थ. सो SAN, sane. अगेन वही रूल है, SAN. सो A इज अ वॉल, S एंड N आर कॉन्सोनेंट्स. तो अगर सिर्फ एक वॉल है और उसके आगे पीछे दोनों कॉन्सोनेंट है तो शॉर्ट वॉल की आवाज निकलेगी, सैन. लेकिन अगर दोनों कॉन्सोनेंट्स के एंड में एक और वॉल है या ई है स्पेशली, सो दैट मींस द साउंड विल बी ए लॉन्गर वॉल. दैट इज सेन. SANE, सेन. सेन मतलब मेंटली हेल्दी, जिसका दिमागी तवाजुन अच्छा हो, जहनी तौर पे जो सही हो इंसान बिल्कुल. देन सैनिटरी, रिलेटिंग टू क्लीनलीनेस एंड हेल्थ. एंड सैनिटेशन इज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड क्लीनलीनेस. सॉरी यार, स्टैमर हो गया. क्लीनलीनेस. सो दिस इज सैनिटेशन. अब जब मैं ये सेशंस ऑफलाइन लेता था तो मेरे साथ सबसे ज्यादा डिस्कशन जिस वर्ड पे होती थी, दैट वाज सैनिटरी एंड सैनिटेशन. कि इन दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है. सी व्हाई आवर कल्चर और आवर सोसाइटी इज फार बिहाइंड द सोसाइटीज ऑफ आउटर वर्ल्ड, because we are paying very less attention towards sanitation or sanitary things that we should. बात क्या है, बात ये है कि हमने सैनिटरी वर्ड को बाकी चीजों के साथ कनेक्ट किया और इसलिए हमने इसको डिग्रेड कर दिया. अदरवाइज इसकी इंपॉर्टेंस जो है, सैनिटेशन साइंसेस या सैनिटरी इंजीनियरिंग जो है या सैनिटेशन इंजीनियरिंग हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. अगर आप बाहर की कंट्रीज देखोगे या बाहर की सोसाइटीज देखोगे, यू विल सी दैट सैनिटेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. द पॉइंट इज कि आपका सैनिटेशन सिस्टम या सैनिटरी सिस्टम जितना अच्छा होगा, you will be more healthy. Why you will be more healthy? Because this system will keep your environment healthy and keep your environment very clean. But हम क्योंकि इसको एक लो वर्ड मानते हैं, इसलिए हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया. एंड अवर यहाँ JNK में तो फिर भी काफी साफ है. चंडीगढ़ is also one of the cleanliest cities in India that I have ever been to. But the cities which are very crowded, there are some parts of Delhi, there are some parts of Lucknow as well, there are some parts of Gujarat as well, where I have been and I have seen कि cleanliness पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर sanitation का मतलब ही कुछ और लिया जाता है. सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन सैनिटेशन की ये है कि दिस वर्ड इज रिलेटेड टू टॉयलेट्स और वॉशरूम्स, या फिर दिस वर्ड इज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ वुमन. तो जबकि ऐसा नहीं है. सैनिटेशन और सैनिटरी का क्लियर कट रेलेवेंस पब्लिक हेल्थ और क्लीनलीनेस के साथ है. देयर आर अदर वर्ड्स, बट हमारा जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है इंडिया में, टीवी पे जो एड्स दिखती हैं, दे मैनिपुलेट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड, एंड उसी वजह से हमारी पब्लिक परसेप्शन बन जाती है. इसलिए हमने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया. सो क्लियर है सबको? सो द लास्ट वर्ड इज सेंड. तो सेंड का मतलब होता है क्लाइंब. अब या गो. सी द पॉइंट इज सेंड, SCEND. दिस सेंड इज क्लाइंब. ये क्लाइंब वैसा नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, अपना पेड़ पे चढ़ना, क्लाइंब ए ट्री और क्लाइंब अ माउंटेन वाला क्लाइंब नहीं है. ये है टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेवल ऑफ समथिंग और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग. लाइक असेंड इज टू क्लाइंब अपवर्ड्स. अब यहाँ पर ये जो असेंड है ना, दिस इज नॉट द असेंड दैट वी यूज
that I am ascending a mountain, or I am climbing a mountain and I am ascending day by day. कि मैं एक पहाड़ चढ़ रहा हूँ, मैं ट्रैकिंग करने गया हूँ, एक पहाड़ चढ़ रहा हूँ और मैं हर दिन पिछले पिछले लास्ट टाइम जितना चढ़ा था अगले दिन में उससे ज्यादा ही चढ़ रहा हूँ. So this is not that ascent. This is ascending is the ascending of volume or the ascending of voice or the pitch of voice. फिर crescendo is the climbing up of volume of a music. आपके घर में म्यूजिक सिस्टम है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हो, दैट इज crescendo. And the third is descend. So the descend is to go or climb down. Okay, वो level low करना, नीचे उतरना या जाना. So is it clear to everyone? So ascent also means when a king comes to rule, that is also called ascent, right? Yes. See, the thing that you are asking about, मैं उसको थोड़ा explain कर देता हूँ. ये बहुत अच्छा किया कि you asked this point. जो मोनार्की होती है या फिर जिसको हम किंग सिस्टम कहते हैं कि एक बादशाह, फिर उसका बेटा आगे बादशाह बनेगा, फिर उस बेटे का बेटा बादशाह बनेगा. सो अगर मैं आज किंग हूँ, लेट सपोज मैं किंग हूँ या आप किंग हो किसी पर्टिकुलर लोकेशन के, अब आप बूढ़े हो गए हो या फिर आप प्री इंडस्ट्रियल एरा में रह रहे हो जहां पर बेटे जो थे वो आपस में लड़कर बाप की गद्दी पे आना चाहते थे. तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जब कोई आदमी या जब कोई उस गद्दी का दावेदार, उस थ्रोन का दावेदार प्रेजेंट किंग को हटाता है और खुद उस गद्दी पे बैठता है और अपना हक जताता है, चाहे वो उसको आराम से मिला हो, चाहे उसको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ी हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडिंग द थ्रोन या असेंडिंग द चेयर या असेंडिंग द किंगशिप. ये पूछा किसने, मरियम ने या हु आस्क्ड दिस? Yes. नाइस नाइस मरियम, वेरी गुड. ऐसी क्वेश्चंस पूछा करो, ये इंटरेस्टिंग है काफी. सो दिस इज ऑल्सो एन ascend or descend. अब जैसे अकबर का बेटा है शाहजहां, सो शाहजहां ascended the throne and अकबर descended the throne. कि अकबर ने अपनी गद्दी छोड़ी और शाहजहां उस पे बैठ गया. सो शाहजहां ने थ्रोन को असेंड किया लेकिन अकबर ने थ्रोन को डिसेंड किया. सो आई होप ये क्लियर हुआ सबको, ये असेंड और डिसेंड वाला. या मरियम आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if everything is clear, let's see grammar section today. So आज मेरे पास कुछ खास है नहीं grammar section का, because we have completed a big portion of grammar. And before moving further with the grammar, I just want to make sure कि हम सारे same page पर हैं. So we will have a discussion very soon, either on Monday or on Sunday or Saturday, depending on the feedback that you will give me. और वो डिस्कशन जो होगी वो मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड होगी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर पे. सो वी विल डिस्कस अबाउट 3 टॉपिक्स, मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म एंड प्रोनाउन एग्रीमेंट. अब ये 3 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो ये एक डिस्कशन होगी जिसमें मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, कुछ वर्ड्स मिसिंग होंगे एंड यू हैव टू फिल दोस सेंटेंस, कंप्लीट दोस सेंटेंसेस, या फिर मैं कुछ sentences दूंगा and you have to understand which one is correct and which one is incorrect, why it is incorrect and why it is correct. So the next 1 or 2 sessions should be very interactive the way I have planned. If everything goes according to the plan, तो next sessions जो होंगे हमारे वो बहुत interactive होने चाहिए, क्योंकि उन sessions में मैं और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही मैं कुछ और बताऊंगा. हम सिर्फ modifiers, parallelism और pronoun agreement के ऊपर कुछ सेंटेंसेस पे काम करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होते हैं, और हमें अपनी ही मिसकंसेप्शंस का या अपनी गलतियों का एहसास होएगा. सो इज देयर एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीस 3 टॉपिक्स और एनी अदर टॉपिक इन इंग्लिश राइट नाउ और कम्युनिकेशन स्किल्स राइट नाउ? Why do you always call it was a pleasure to help you? नहीं Yeah, it was a pleasure to do some work for you. फैसल अदर दूसरे वर्ड्स में ये पूछते हैं कि फैसल आप फिर से पूछना है, मुझे समझ नहीं आया यार. why do we call it
It was a pleasure to work with Okay, you. it was a pleasure to work with you or it was a pleasure to do business Was. with you. I was in हाँ, past. हम was क्यों यूज करते हैं, past tense में क्यों यूज, यही क्वेश्चन है ना कि हम why Why are we using past? past tense, why don't we say it's a Yes. pleasure working with you, या it's a pleasure doing business with you. See, the point is जो concept है business का या work का, उस context उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें पास्ट यूज करना पड़ता है while saying it's a pleasure to work with you या it was a pleasure to do business with you. इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको. देखो, पहला पॉइंट हम लेते हैं बिजनेस का. अब बिजनेस कब होता है? बिजनेस इज नॉट समथिंग के आपने एक ही बार में किया, वो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, जो एक एक्टिविटी या एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्टिविटी के बाद खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. और हाँ, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस और प्रोग्रेस. जैसे यार एक मिनट, डिस्टॉर्शन आ रही है काफी, लेट मी. फैसल, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, यू डिड इट योरसेल्फ. अरे यार ओ भाई. Okay, so let's come to the topic. So the question is, why do we use past tense when we say it was a pleasure working with you? Yeah, it was a pleasure doing business with you. Yeah, it was nice working with you. The point is, it does not. It depends on the concept of business or the concept of working. अब बात ये है कि जब मैं वर्ड बिजनेस यूज करता हूँ, उस वर्ड का मीनिंग हमें देखना है, और उस मीनिंग पे डिपेंड करता है कि मेरा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज एम आर होगा या वॉज या वर होगा, कि मतलब वो पास्ट टेंस में होगा, फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट टेंस में होगा. सो बिजनेस कब होता है? बिजनेस तब होता है जिस टाइम हम एक दूसरे के साथ एक ऑनगोइंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? और उस ऑनगोइंग प्रोसेस की शुरुआत को बोलते हैं कि वी आर स्टार्टिंग ए बिजनेस, वी आर डूइंग ए बिजनेस, एंड अब हम उस प्रोसेस में आ गए. सो द इनिशियल डेज आर बिजनेस, द नेक्स्ट डेज आफ्टर दोस इनिशियल डेज इज प्रोसेस. जैसे मैं और फैसल अगर अभी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, मैं बोलता हूँ फैसल को कि यार यू विल ब्रिंग मी टी शर्ट्स एंड आई विल प्रिंट दोस टी शर्ट्स. सो दिस इज द बिजनेस दैट वी आर डिस्कसिंग. हम बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, और जैसे ही फैसल टी शर्ट्स लाएंगे और मैं उनको प्रिंट करूंगा, द मोमेंट आई स्टार्ट प्रिंटिंग द फर्स्ट टी शर्ट, जैसे ही मैं उसको प्रिंट करूंगा, दैट विल बी नो मोर बिजनेस, दैट विल बी ए प्रोसेस. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट प्रोसेस इट वाज बिजनेस. इसीलिए हम बोलते हैं इट्स अ प्लेजर टू डू बिजनेस विद यू, या इट वाज अ प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू, क्योंकि उसके आगे वो प्रोसेस बन जाता है, फिर वो बिजनेस नहीं रहता. बिजनेस वो इनिशियल डेज में रहता है, जब हम दोनों डिस्कशंस करते हैं या जब हम दोनों एक दूसरे के साथ टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशंस करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि किसका कितना शेयर होगा और किसका कितना पार्ट होगा. ये रहा बिजनेस का इशू, बिजनेस का क्वेश्चन. अब आती है बारी वर्क की. सो इट इज नाइस वर्किंग विद यू का मतलब हो जाता है कि वर्क अभी चल रहा है. जैसे मेरे पापा ने घर बनाना है, एंड he has hired some mistries and some laborers and one or two civil engineers, जो कि उनको मैप वगैरह बना कर देंगे और सारा समझाएंगे कि कहाँ पर छत कितना ऊंचा होना चाहिए, कमरों की हाइट कितनी होनी चाहिए, या फिर दीवारों की मोटाई विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी ईंटों की दीवार होनी चाहिए, 4 इंच की, 6 इंच की, या किले जैसी, फोर्ट जैसी 8-8 10-10 ईंटों की दीवारें होनी चाहिए. सो जब ये प्रोसेस जो चल रहा होगा ना इस टाइम, ये जो डिस्कशंस होंगी मेरे पापा की मिस्त्रियों के साथ, मजदूरों के साथ या इंजीनियर्स के साथ, दिस इज कॉल्ड वर्क. So at that time they are working. Once the work has started, it is converted into a process. फिर वो process बन जाता है. इंग्लिश लैंग्वेज में बिजनेस, वर्क और प्रोसेस, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं. और उर्दू या हिंदी या हमारी जो नेटिव इंडियन हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस हैं, उसमें ये तीनों एक ही चीज है. इसीलिए ये कंफ्यूजन होता है कि यार जब भी हम बोलते हैं कि इट वाज नाइस डूइंग बिजनेस विद यू या इट वाज माय प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू, बिजनेस तो हम कर रहे हैं अभी, तो वॉज क्यों लगाया?
हम इसको कंटिन्यूअस टेंस में भी चला सकते थे, बट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चलाएंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में तीनों का मीनिंग अलग है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। हमारी नेटिव लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी में उर्दू हो गई, मलवारी हो गई, पोथवारी हो गई, या गुजराती हो गई, पंजाबी हो गई, पंजाब इवन पंजाबी में भी बिजनेस, वर्क और प्रोसेस का अलग अलग मीनिंग है। इंग्लिश लैंग्वेज में इनिशियल चीजों में को बिजनेस या वर्क कहा जाता है, और एज सुन एज दे स्टार्ट वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस हैं उसमें अगर मैं कहूंगा कि हाँ मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ फैसल के साथ, या मैंने फैसल के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब तक वो पूरा 5 साल 6 साल तक वो बिजनेस खत्म नहीं हो जाता, या लेट दैट जेट गो, मेरे घर के पास जेट गुजरता है। Really very sorry for this. Bhai, I'm really very sorry for this. There was a jet going very close from my home, और उसके पीछे एक ट्रेल थी, इसी वजह से इतनी बड़ी आवाज आ रही थी. So is my voice clear now? Yes, sir. Yes, it's clear now. हाँ, तो अब आते हैं बात इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस में बिजनेस प्रोसेस और वर्क का क्या मीनिंग है। इंडियन नेटिव लैंग्वेज, लेट्स से मैं पंजाबी में बोलता हूँ यार फैसल मैं तेरे नाल बिजनेस करना चाहना, या फैसल मैं आपके साथ एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, या कारोबार कर रहा हूँ, या फिर हम हिंदी में बोलेंगे कि फैसल मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। अब इन तीनों वर्ड्स में आप एक चीज देखना, इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने टेंस प्रेजेंट यूज किया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चूज किया। फैसल मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, या फैसल मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। सो इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस में काम का, बिजनेस का, प्रोसेस का एक ही मीनिंग है, और वो मीनिंग एक स्ट्रेच अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सेम रहता है। जैसे अगर मैं यही डिस्कशन, जो टी शर्ट प्रिंटिंग वाली डिस्कशन है, ये मैं इंग्लिश को छोड़ के इंडियन किसी नेटिव लैंग्वेज में करूँ, लेट्स से उर्दू या हिंदी, हिंदी में करता हूँ मैं फैसल के साथ कि फैसल मैं टी शर्ट्स का एक कारोबार शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ, कारोबार शुरू करना चाहता हूँ आपके साथ। अब फैसल ने मुझे टी शर्ट्स ला के दी, मैंने उनको प्रिंट किया और उनको बेचना शुरू किया, एंड एज सुन एज आई स्टार्ट गेटिंग मनी फ्रॉम बायर्स जो कि वो टी शर्ट खरीदेंगे, आई एम एट द सेम टाइम मैं प्रॉफिट शेयरिंग करूंगा फैसल के साथ। मैं कुछ हिस्सा फैसल को दूंगा जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से, और रेस्ट इज माइन, चाहे वो मेरा ज्यादा हो या कम हो, दैट डज नॉट मैटर। द थिंग इज, जब तक ये काम चलता रहेगा और जब तक मैं इस काम को स्विच नहीं करूंगा, इंडियन नेटिव लैंग्वेज में ये एक बिजनेस है जो कि चल रहा है। जबकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें बिजनेस स्टार्ट होता है, उसके बाद वो प्रोसेस बन जाता है। और अगर आपको इसके बारे में और अगर आपको लग रहा है ना कि ये थोड़ा अजीब हो गया, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई आईटी कंपनी या जब भी कोई इंजीनियरिंग कंपनी या हॉस्पिटल या स्कूल या कुछ भी शुरू करता है कोई, तो वो बोलता है कि यार मैं इसका काम शुरू करूंगा। लेट्स सपोज मैं एक आईटी कंपनी खोलता हूँ जिसमें ना एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे पास 6 बंदों की टीम है, और वो 6 बंदों की टीम जो है वो टेक्निकल सपोर्ट देगी किसी एक प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट फैसल का है। वो जो सॉफ्टवेयर है या वो जो हार्डवेयर है वो फैसल बेचता है कस्टमर्स को, और उन कस्टमर्स को कोई भी इशू आता है वो कस्टमर्स कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं, चैट करते हैं, और वो मेरे टीम के पास आते हैं। सो जब ये मैं शुरू करूंगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं बोलूंगा कि यार आई एम डूइंग ए बिजनेस, बट एज सून एज दिस कंपनी स्टार्ट्स रनिंग, इट इज नो मोर, it will be never a business, it will be a process that is going on, or it will be a project. So इसीलिए जब भी हम बोलते हैं ना कि it was a pleasure doing business with you या it was nice working with you, हम past tense यूज करते हैं वर्क और बिजनेस के लिए, हम प्रेजेंट टेंस नहीं यूज करते इंग्लिश में वर्क और बिजनेस के लिए। इंग्लिश में वर्क और बिजनेस स्टार्टिंग के डेज होते हैं, ना कि एक पूरा स्ट्रेच्ड प्रोजेक्ट होता है। लेकिन इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस जितनी भी है, ऑलमोस्ट 99.9% में वर्क, बिजनेस और प्रोसेस, इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है। सो आई होप क्लियर होगा फैसल थोड़ा सा।
नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा क्लियर हो गया। देखने में ये जेट बहुत खूबसूरत लगते हैं, खासकर रात के टाइम जब ये पीछे फायर ट्रेल छोड़ते हैं। इसीलिए मैं छत पे बैठ के पढ़ाता हूँ आपको, मेरा बेटा नीचे वो पढ़ाने नहीं देता। सो इज देयर एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू आस्क? Is there anyone else who has any question? Mariam or Rakshanda or this Sheikh? Okay, so we shall keep this session this much and we shall meet in the next session. It depends on you. आप जब बोलोगे मैं तब next session रखूंगा. Either it will be on Monday, either it will be on Saturday, or it will be on Sunday. Make sure you guys go through these 3 topics because we are going to discuss these 3 topics in the next session, and it will be little bit longer session as compared to what we are currently doing. So thank you guys, you have always been very wonderful, always been very generous, and take good care of yourself. We shall meet in the next session. Bye.